So I would like to introduce faculty Saini Mukherjee. She is going to take care of each and everything from here. और आज बहुत सारे वो tips और tricks बताएंगी meta ads के ऊपर, and there are many things which she is going to tell you. So please cooperate her, please turn on the camera और सारी चीजें आप सीखिए, सारी चीजें इनसे समझिए कि what all the things are there, क्या चीजें हैं. Thank you, Miss Saini, for joining this. I really appreciate for this webinar. Thank you for taking this, the time. Thank you. Thank you. Over to you, ma'am. Thanks for giving me this opportunity. Hi everyone. Good evening. My name is Shani Mukherjee, and I have 5 years of experience in digital marketing field. And so today we'll talking about the meta ads for lead generation. In this session, we will learn what is lead generation, the difference between lead and prospect, which types of businesses can use lead ads, why lead ads are so effective in today's digital world, and important things that matter in these campaigns. So I hope it will be exciting for you. So let's start. Is my screen visible? Yeah. Okay. So before directly jump into the leads ads, first we need to know what is lead generation or introduction to the lead generation. Do you have any idea about lead generation process and why we need to generate leads and all? First, I need to know from yourself. Lead generation probably means finding the prospective clients and all that for your product or service. Okay. Maybe And we can say the customer is ready to pay for that particular activity. That is ideally the lead. then what is the sales? Pardon me? If customer is ready to pay for some activity, then what is sale? Then what is sell? Sell you are saying, is it? Yes, sales. Ma'am, basically what I'm trying to say is when we say okay, we have generated a lead, that means people are interested in whatever we are giving them as a service and they are ready to pay. I mean, it should not be a scenario wherein we are just working on something and then we are not getting any result out of that. I mean, I was just trying to say in layman language, maybe you can explain us. Okay. तो मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ. आप तो इंटरनेट पे बहुत सारा फॉर्म फिलअप्स करते हैं. जितना सारा फॉर्म फिलअप्स आप करते हैं, सब जगह से क्या आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर No, सब जगह पे आप no, कस्टमर होते no, हैं? नहीं no, होते हैं madam. ना. Lead, तो लीड मतलब होता है कि अगर कोई इंक्वायरी करता है मेरा प्रोडक्ट के बारे में, ये नहीं है कि वो हमेशा रेडी रहेगा कि मेरा प्रोडक्ट वो खरीदेगा ही. हो सकता है वो मेरी तरह के साथ कोई दूसरा तीसरा एजेंसी पे जाके भी लीड फॉर्म फिलअप किया है टू नो अबाउट द व्हाट इज द प्रोडक्ट, टू गेन सम प्रोडक्ट नॉलेज, और वो देख रहा है कि कहाँ पे बेस्ट प्राइस मिलेगा वहां पे हम जाएंगे. तो लीड मतलब है कि अगर कोई लीड फॉर्म फिलअप करके मेरे पास आया है तो एक इंक्वायरी जनरेट हुआ है मेरा जो प्रोडक्ट है और मेरा जो बिजनेस है उसके बारे में. ठीक है. तो लीड जनरेट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है. तो लीड्स को हमें प्रोस्पेक्ट बनाना होता है और प्रोस्पेक्ट जो जनरेट होता है उसके बाद आता है सेल्स. तो इंट्रोडक्शन टू लीड जनरेशन का मतलब है कि किसी भी इंसान को मेरा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्वेरी करवाना है थ्रू आवर एड्स. ओके. क्या मैं समझा पाई हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है या फिर मुझे और भी डिटेल में बताना पड़ेगा?
तो मैडम ये अगर इफ यू imagine the sales funnel or filter, okay, the first phase will be the lead where you will get all the prospective clients. Okay, then those will be inquiring. Uh, I mean, it is basically about the funneling part. Lead, then sales We and are talking about the sales funnel. Then top of the funnel will be the awareness campaign, where we do the brand awareness, where we run the ads for the brand awareness purpose. मतलब मेरा एक प्रोडक्ट है, मुझे अवेयरनेस जनरेट करना है, लोगों तक मुझे वो प्रोडक्ट पहुंचाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग डिस्प्ले एड्स रन करते हैं, फेसबुक पे वीडियो व्यूज एड रन करते हैं, कभी कभार एंगेजमेंट एड रन कर देते हैं, पेज लाइक्स एड रन करते हैं, क्योंकि जितना सारा पेज पे मेरा लाइक जनरेट होगा तो उतना मेरा फॉलोअर्स गेन होगा, और जितना मेरा फॉलोअर्स गेन होगा उतना लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा। तो अवेयरनेस करने के लिए हम लोग, जो सेल्स फनल का जो टॉप ऑफ द फनल होता है वो होता है अवेयरनेस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट आता है, वहां पे रहता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब जब लोग हमें एक ब्रांड के जैसा कंसिडर करते हैं, जब लोगों को लगता है कि हाँ, दिस इज अ गुड ब्रांड, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो कंसिडरेशन वाला पार्ट पे हम लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिमोनियल्स पोस्ट करते हैं, एसईओ पे ध्यान देते हैं, जितना हो सके स्ट्रॉन्ग एसईओ बनाते हैं, डिस्कवरी एड्स पे ध्यान देते हैं। तो ये सारा मेरा कंसिडरेशन एड पे आता है। कभी कभार हम लोग कंसिडरेशन के लिए ट्रैफिक एड भी चलाते हैं, क्योंकि अभी के डेट में जो हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है ये जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि प्रोडक्ट के वेबसाइट विजिट करते हैं, राइट? आप सभी करते होंगे वेबसाइट विजिट किसी भी प्रोडक्ट लेने से पहले। हेलो? करते हैं। यस मैडम, विजिट करते हैं। तो वहां पे जाके आप क्या क्या देखते हैं वेबसाइट पे जाके? प्रोडक्ट का डिटेल देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं मैडम रिव्यूज के, भी देखते और रिव्यूज देखते हैं सबसे पहले तो, और डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, क्वालिटी किस चीज की क्या है, सब चीज देख लेंगे। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, प्रोडक्ट का फोटोज चेक करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं। तो ये सबसे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में हमारे अंदर क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, इसको भरोसा किया जा सकता है, राइट? तो सेल्स फनल का जो बीच में आता है, तो बीच मतलब मिडिल ऑफ द फनल आता है। तो मिडिल ऑफ द फनल में क्या हुआ, मिडिल ऑफ द फनल में मेरा कंसिडरेशन वाला पार्ट। तो अब आएंगे हम लोग एकदम लास्ट वाला पार्ट में, जब हमें चाहिए सेल्स, है ना? तो बहुत हो गया अवेयरनेस, कंसिडरेशन, सब कुछ, अभी हमें सेल्स चाहिए। तो सेल्स जनरेट करने के लिए हम लोग लीड एड और शॉपिंग एड या फिर सेल्स एड चलाते हैं। लेकिन लीड एड्स को हम लोग डायरेक्ट सेल्स एड में नहीं ला सकते, क्योंकि लीड के अंदर हमें काम करना पड़ता है। जैसे कि शॉपिंग एड या फिर सेल्स एड में हमें उतना काम नहीं करना पड़ता है। हम शॉपिंग एड चलाते हैं, लोग क्लिक करते हैं, पे करते हैं और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो डायरेक्ट आरओएस मेरा वहां से जनरेट हो गया। लेकिन लीड में क्या होता है, लोग डायरेक्ट तो परचेस नहीं कर सकते, लोगों को पहले लीड फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, उसके बाद उसी कंपनी से कोई टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट से उनको कॉल करते हैं, वो उनको काउंसलिंग करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं। अगर उनका फिजिकल स्टोर है तो फिजिकल स्टोर विजिट करने के लिए बोलते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट सेंड करते हैं, कभी कभार फ्री ट्रायल दिया जाता है, फ्री डेमो क्लास दिया जाता है। तो ये सब कुछ करने के बाद एक लीड सेल तक, मतलब लीड से लेके सेल तक का वो जर्नी होता है, मतलब लीड से लेके प्रोस्पेक्ट तक का, कि हाँ, यहाँ पे मैं लीड थे, उसके बाद उसको मैंने डेमो क्लास अटेंड करवाया, उसको मैंने सेंटर विजिट करवाया, या फिर उसको मैंने फ्री ट्रायल दिलवाया। उसके बाद वो सोचेगा कि हम खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे। तो लीड से लेके कस्टमर तक का जर्नी बहुत लॉन्ग होता है। तो हम लोग लीड को डायरेक्ट कन्वर्शन के अंदर भी नहीं ला सकते, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव अगर हम लोग बात करेंगे तो सेल्स फनल के एकदम नीचे जो कन्वर्शन वाला पार्ट आता है, तो वहां पे हम लोग लीड्स का काम करते हैं। क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटर हम लोगों के लिए, अगर कोई इंसान कॉल करके बोल रहा है कि हाँ, मुझे आपका प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट है, हम क्वेरी कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम क्वालिटी लीड वहां से जनरेट करके दिए हैं। ये एज अ डिजिटल मार्केटर पर्सपेक्टिव हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक बिजनेस पर्सन या फिर बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, तो लीड जनरेट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया।
लीड जनरेट का मतलब है कि कोई एक क्वेरी जनरेट हुआ है, अब उसके पीछे मुझे काम करवाना है, मतलब वो सेल्स टीम का काम होता है। सेल्स टीम काम करेगा, वहां से प्रोस्पेक्ट निकालेगा और उसके बाद उसको मेरा कस्टमर बताएगा। क्लियर हुआ? या मैडम। हाँ मैम, ये आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का, और रियल एस्टेट में ये ऐसा नहीं है कि लोग वेबसाइट पे गए और एक फ्लैट को ऐड टू कार्ट किया और पे कर दिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं। वो उसके लिए हमें लीड चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट लीड हमारे लिए एक ऑक्सीजन है। उसके बाद हम उन लोग को कांटेक्ट करेंगे, तो मे बी उसमें से अगर 100 लोगों को कांटेक्ट करते हैं तो 2 या 3 लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये समझ में आया क्योंकि क्यों हम लोग लीड को डायरेक्ट सेल्स नहीं बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो हम लोग लीड एड क्यों चलाते हैं, मतलब इतना सारा एड्स है, तो हम लीड्स एड्स में क्यों फोकस करते हैं? एक तो है कि हमें कस्टमर का डेटा कलेक्शन मिल जाता है इंस्टेंट। आप लोग अगर देखेंगे कि फेसबुक पे अगर आप अभी कभी कोई लीड फॉर्म फिलअप किए या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन रिसेंटली अगर आप लोग लीड फॉर्म फिलअप करने जाएंगे फेसबुक पे तो देखेंगे वो ऑटो फिल हो जाता है। मतलब आपको टाइप करके अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर कुछ लिखने का जरूरत नहीं, वो ऑटो फिल होके खुद ही फिलअप हो जाता है। तो एक तो हो गया इंस्टेंट, मेरा कस्टमर का डेटा कलेक्शन हो गया। तो कस्टमर जो मेरा जो बाउंस रेट है वो बाउंस रेट कम हो जाएगा। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आया, मेरा ऐड देखा और बाउंस बैक करके चला गया, क्योंकि वो प्रोसेस लेंदी रहा। नहीं, प्रोसेस तो इजी है। तो एक हो गया मेरा इंस्टेंट कस्टमर डेटा कलेक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा मेरा है कॉस्ट इफेक्टिव कस्टमर एक्विजिशन। शॉपिंग एड या फिर सेल्स एड से हम लोगों का लीड एड का जो है उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है। मतलब शॉपिंग एड में मेरा डेली बजट जितना रहता है, लीड एड में वहां से कम रहता है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आप कितना प्राइस का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर देखा जाता है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 1 लाख का और आपका डेली बजट 300 का है, तो आपका लीड जनरेट नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका मतलब प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 2,000 3,000 ऐसा है और आप डेली बजट रख रहे हैं 200 300, देन वहां पे एक चांसेस है कि आपका जो लीड है वो जनरेट हो जाए। तो ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर डे कितना बजट का ad चलाएंगे आपका लीड एड्स के लिए। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है कि मोबाइल फ्रेंडली होता है ये। आप कोई भी लीड फॉर्म ओपन करिएगा आज के डेट पे फेसबुक पे, देखेंगे कि उसे दिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो फिलअप करने के लिए भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये एक ऐसा एड है जहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर का जो यूआई यूएक्स जो होता है, तो ये बहुत अच्छा है, जो अदर्स एड में नहीं होता है। लाइक सेल्स एड में अगर बात करेंगे या फिर कैटलॉग एड में हम लोग बात करेंगे, तो देखेंगे वहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप कभी फेसबुक से डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते। कभी आप फेसबुक से परचेज करके देखें? लाइक फ्लिपकार्ट, amazon का एड तो फेसबुक पे आता है, कभी क्लिक करके देखें कि कहाँ जा रहा है वो चीज? वेबसाइट को डायरेक्ट होता है वो काफी बार। हाँ, तो वहां से उसको वेबसाइट में लिया जाता है और वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको 100 तरीके का अलग प्रोडक्ट दिख जाएगा। अब कस्टमर को आप जितना सारा ऑप्शंस देंगे, उतना आपका जो है ना, क्या बोलते हैं, कन्वर्शन रेट वो घट जाएगा। अब इसके पीछे भी बट साइकोलॉजी है, क्यों घट जाएगा? मैडम, क्यों? देर आर लॉट ऑफ हाँ, सेलर्स ऑन फेसबुक अभी जो छोटा छोटा रहते हैं ना, कुछ दे जस्ट सेल डेटा इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उनका हर एक का वेबसाइट भी नहीं होता। हम्म। ओके, सो हाउ दे मैनेज विदाउट वेबसाइट? ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ओके फाइन। ठीक है। तो अब जो बात मैं बता रही थी कि ये बहुत, मतलब इसका यूआई यूएक्स बहुत अच्छा है, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस ये वाला ऐड का बहुत अच्छा है। तो इससे मेरा कन्वर्शन रेट भी बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत हाई रहता है मेरा कन्वर्शन रेट यहाँ पे। अच्छा, लास्ट वन क्या है? हाई जैसे स्केलेबिलिटी मैम अभी एंड जो आप टारगेटिंग ऑप्शंस। बता रही थी, मैं बोल रहा था कि अभी आपने कहा कि ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो कन्वर्जन रेट कम होता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसका रीजन ये है कि आपको, आपके पास अगर
मान लीजिए आपका हीरो प्रोडक्ट का प्राइस है 5000, अब हीरो प्रोडक्ट के अलावा भी तो आपको वेबसाइट में 2 3 4 5 प्रोडक्ट रहेगा जिसका प्राइस 2000 3000 या फिर 4000 होगा। तो आप क्या चाहेंगे कि आपका जो एड है वहां से लोग अगर खरीदे कुछ, वो आपका हीरो प्रोडक्ट ही खरीदे, मतलब 5000 का प्रोडक्ट ही खरीदे। आप तो ये नहीं चाहेंगे कि आपका एड देखे कोई आके 2000 का प्रोडक्ट खरीद ले आपके वेबसाइट से। लेकिन अगर आप आपका जो कस्टमर है उसको ऑप्शन देंगे कि आपके पास 2000 का भी प्रोडक्ट है, 3000 का भी है, 5000 का भी है, कस्टमर ट्राई करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट उठाएगा? अगर आप कस्टमर होते तो आप ट्राई करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट उठाते? मे भी चांसेस है कि हो सकता है जो लेसर अमाउंट का प्रोडक्ट है वो ले लें। बस यही रीजन है कि हम कस्टमर को ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाते हैं। हम जितना ज्यादा ऑप्शंस दिखाएंगे उतना कस्टमर हाथ से जाने का चांसेस ज्यादा होगा। इसलिए कई बार हम लोग अगर फेसबुक से ऐड देख के भी ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट प्लेस पे जाते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं खरीद के भी चले जाते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा ऑप्शंस देख लेते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खरीदना है। तो इसलिए हम लोग कभी कस्टमर को बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाएंगे। मेरा जो हीरो प्रोडक्ट है हम ट्राई करेंगे कि हम लोग उसको ही शोकेस करें थ्रू आवर एड्स, कि जिससे मेरा अगर सेल भी हो जाए तो मैक्स आरओआई जनरेट हो मेरा वहां से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो यहाँ पे लीड्स एड स्ट्रेटेजी है फॉर इंडियन मार्केट। तो लीड एड के लिए हम बोलेंगे कि अगर आप काम कर सकते हैं रीजियोनल लैंग्वेज पे, मतलब ओवरऑल इंग्लिश पे नहीं जाके, हमारा तो इंडिया पे बहुत सारा लैंग्वेजेस है, हिंदी है, गुजराती है, कहीं भी कभार मराठी है, साउथ इंडियन में तमिल, तेलुगु, इवन बंगाली, इतना सारा लैंग्वेजेस है। तो हम ट्राई करेंगे कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो अगर पूरा इंडिया में है तो हम लोग वहां पे हर एक जगह का जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे ऐड बना के उस ऐड को प्रमोट करेंगे। ये अगर कर सकते हैं हम लोग तो इससे मेरा जो लीड फॉर्म फिलअप होने का चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंड जो पॉइंट है वो है ऑफर स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स। स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स का मतलब, जैसे मैं बोली हूँ कि फ्री डेमो, ट्रायल क्लास, कंसल्टेशंस, फेस्टिवल डिस्काउंट्स, मतलब जिससे लोग क्विक कन्वर्ट हो, क्विक फॉर्म सबमिट करें। मतलब इंसानों में एक रश जो है वो होना चाहिए कि मुझे अभी इसको फिलअप करना है वरना मेरा जो ऑफर है वो ऑफर तो हाथ से चला जाएगा। एक ऐसा चीज मेरा जो ऑडियंस है, मेरा जो टीजी है, उनके उनके अंदर लाना है हम लोगों को। ठीक है, वो हो सकता है कि बुक योर फ्री डेमो, लास्ट 50 सीट्स लेफ्ट, या फिर लास्ट 10 सीट्स लेफ्ट, इस तरह का मुझे मेरा जो एड कॉपी है वो बनाना है, या फिर इस तरह का कोई प्राइमरी टेक्स्ट मुझे देना है जिससे मेरा जो कन्वर्शन रेट है या फिर कन्वर्शन रेशियो है वो हाई रहे, कि लोगों को लगे कि भाई मेरा तो सीट खत्म हो जाएगा, मेरा तो मैं तो चांस नहीं मिलेगा मुझे फ्री डेमो क्लास करने का, तो अभी अभी लीड फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो अगर कोई लीड फॉर्म फिलअप कर रहा है तो आपका क्या हो रहा है, एक क्वेरी जनरेट हो रहा है, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, हो सकता है कि वहां से आपका सेल आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं थर्ड पॉइंट बताने जाऊंगी, जो क्वेश्चन आप किए थे कि अगर किसी का वेबसाइट नहीं है तो वो कैसे ये वाला प्रोसेस है ये प्रोसेस करेंगे। तो आप अगर देखेंगे कि जो लोग फेसबुक पे नॉर्मल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विदाउट एनी वेबसाइट, विदाउट एनी लिंक, तो वो लोग कैसे सेल कर रहे हैं, उनको अगर आप वहां पे जो कॉल टू एक्शन बटन रहता है अगर आप वहां पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हो सकता है डायरेक्ट व्हाट्सएप में जा रहा है या फिर डायरेक्ट मैसेंजर पे जा रहे हैं। अब इंडियन ऑडियंस के अंदर क्या है कि वो लोग, वो अभी तो फेसबुक पे नया चीज आया है कि अगर आप लीड फॉर्म फिलअप करें तो आपको ओटीपी देना पड़ेगा, ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो अभी हम लोगों के अंदर आ गया कि नहीं, सब जगह हम लोग ओटीपी नहीं देंगे, ज्यादातर लोगों के अंदर ऐसे ही चलता है कि हम लोग ओटीपी नहीं देंगे, हम लोग चैट करेंगे। तो उन लोगों के लिए हम लोग लीड फॉर्म जो ऐड होता है, लीड्स ऐड जो होता है, उसको हम लोग व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई वेबसाइट का, कोई लैंडिंग पेज का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो क्वेरी है वो क्वेरी आप आपके व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं। क्लियर हुआ?
जिसका क्वेश्चन था ये? It is my question to you. आपको क्लियर हुआ ये चीज? Yeah, madam. ओके, अच्छा अच्छा। फोर्थ पॉइंट जो है वो है ऑप्टिमाइज लीड फॉर्म्स। तो पहली बात तो ये लीड फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन हम नहीं डालेंगे कि जिस क्वेश्चन का आंसर देते 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 इंसान पागल हो जाए। ऐसा करना नहीं है। हम लीड फॉर्म को जितना हो सके शॉर्ट रखेंगे, जितना हो सके सिंपल रखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन रखेंगे जो क्वेश्चन मुझे बेटर क्वालिटी का लीड जनरेट करने में हेल्प करे। ठीक है, बहुत कुछ जान के तो हमें फायदा नहीं है। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एड चला रहे हैं, यहाँ पे आपको तो ये जान के फायदा नहीं है कि वो कौन सा लोकेशन पे एड चलाएगा, क्योंकि वो तो मतलब आपका क्लाइंट कौन सा लोकेशन टारगेट कर रहे हैं ये जान के तो आपका फायदा नहीं है। क्योंकि वो जब आपके पास मीटिंग करने आएगा, जब आपके साथ बात करने आएगा, वो तो डायरेक्ट आपको बोल ही देगा कि नहीं भाई मुझे ये लोकेशन पे टारगेट करना है। तो उसके लिए आप क्या क्या क्वेश्चन रख सकते हैं कि आपका बिजनेस किसके ऊपर है, आप किस तरह का डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले रहे हैं, और आपका बजट क्या है। इससे क्या होगा, आप अगर ये 3 क्वेश्चन का आंसर वो देता है तो इस 3 क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा कि ये जो ऑडियंस है, ये ऑडियंस आपसे काम करवाएगा या नहीं, मतलब ये क्वालिटी लीड है या फिर क्वालिटी लीड नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग डालेंगे जिससे मुझे ये पता चले कि लीड का क्वालिटी कैसा है। ठीक है, और जितना हो सके कम क्वेश्चन डालना, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 4 5 6 7 क्वेश्चन डालेंगे तो वो आंसर देते देते ही जो आपका ऑडियंस है वो बाउंस बैक करके चला जाएगा। तो वो ऐड चलाकर भी फायदा नहीं है, और आपको वहां से कोई लीड जनरेट भी नहीं होगा। ओके, अच्छा। नेक्स्ट जो लास्ट मेरा जो पॉइंट है क्या है, फॉलो अप वीकली विथ ऑटोमेशन। अगर आप आपका जो एड है वहां पे सीआरएम कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो अगर आप सीआरएम कनेक्ट करवाते हैं तो आपका जो फेसबुक का लीड्स है वो डायरेक्ट आपका सीआरएम प्लेटफॉर्म में जाएगा। इस तरह से कोई बहुत सारा पॉपुलर सीआरएम प्लेटफॉर्म है, जहां से मैं एक आपको बोल सकती हूँ, जोहो है, हबस्पॉट है, ये सब सीआरएम प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि मान लीजिए एक लीड आज बोल रहा है नहीं आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना है या फिर आपका सर्विसेज मुझे नहीं लेना है, हो सकता है कि 1 महीना या फिर 2 महीने बाद वो आपका सर्विसेज ले, तो आपको वो मतलब आप उस लीड को फॉलो अप भी कर सकते हैं सीआरएम के थ्रू। ठीक है, ये लीड एड का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास डेटा रहेगा। आप 1 महीना या फिर 2 महीना, कभी कभार 1 हफ्ता बाद भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सर आप कुछ सोचे हैं लेने के लिए या फिर आपको लेना है कि नहीं लेना है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ये वाला स्लाइड से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैम यू आर सेइंग दिस इंटीग्रेट सीआरएम, तो सीआरएम में व्हाट ऑल आई मीन कौन से कंपनीज का रहेगा, या कुछ यू हैव सम आइडिया सीआरएम कहाँ से हम बाय कर सकते हैं? सीआरएम आप जोहो ले सकते हैं, जोहो का सीआरएम बहुत अच्छा है अभी के डेट पे। हबस्पॉट का सीआरएम होता है, ले सकते हैं। टाटा एक्सट्रैक्ट बोल के एक सीआरएम होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके। अभी आपको बात करना पड़ेगा, देखिए इन सब जो सीआरएम है, इन सीआरएम का कस्टमाइज प्लान भी होता है। आप जितना सारा लीड उन लोगों को दे सकते हैं, आपका जितना बड़ा कंपनी होगा, तो आप वहां पे डिस्कस करके उसका प्राइसिंग जो है, कॉस्टिंग जो है वो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, This CRM would be maintained by who? By the actual customer, or it would be maintained by the digital marketing agency? Normally, what is नो, the practice which has been followed? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को देके काम करवा रहे हैं तो जी। वो आपको सीआरएम सेट करके देगा। आपका जो सेल्स टीम है वो उस सीआरएम पे काम करेगा। अगर आपके पास खुद डिजिटल मार्केटिंग टीम है तो वही आपका इंटीग्रेट करके देगा, लेकिन सीआरएम का जो मेन काम होता है वो मेन काम करता है सेल्स टीम। वो लीड देख के वही कॉल करेगा, लीड क्वालिफाइड है या नहीं, लीड प्रोस्पेक्ट है या नहीं, अगर लीड का कोई रिमार्क्स से वो अगर कुछ डालना है, फॉलो अप कितना दिन बाद बाद लेना है, ये पूरा काम आपका सेल्स का ही रहेगा। लेकिन वो सेटअप करना पड़ता है, सेटअप जो आप जिस कंपनी से सीआरएम लेंगे वो सेटअप करके देगा। और कभी कभार डिजिटल मार्केटर्स खुद भी इसको सेटअप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंपनी आपको सेटअप करके दे, आप भी खुद से सेटअप कर सकते हैं। This WhatsApp automation, basically what you're trying to say is, for example, I have filled in a form
and when I say submit, it will take me to the WhatsApp, WhatsApp मेरा direct. WhatsApp account जो होगा वहाँ पे, and then I can either chat to them or either I can say that this is what I'm interested, and that goes to their ID. Is that the only WhatsApp automation you're saying, और उसमें कुछ और भी रहता है? If you can kindly guide on that. For the lead ads, it's the only WhatsApp automation. But if you are talking about the WhatsApp marketing, then there is another process. Okay. तो Thank you. यहाँ पे आप जितना भी सारा लीड जनरेट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको व्हाट्सएप पे भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में फॉलो अप करना है या फिर पोक करना है, तो वो करने के लिए आप व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए भी अलग टूल है। लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन का मतलब है अगर कोई लीड फॉर्म मतलब वहां पे व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहा है Correct. तो वो Yeah. डायरेक्ट, Yeah. ठीक है। Thank you. और इस स्लाइड से किसी को कोई क्वेश्चन है? मैडम ये जानना था, मान लो व्हाट्सएप से अगर लीड लेते हैं या और लैंडिंग पेज से लेते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग में कोई फेसबुक अलग चार्ज करता है क्या उसमें? देखिए, फेसबुक बोलता है कि अलग चार्ज नहीं करता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊंगी तो लैंडिंग पेज पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। ओके, उसका रीजन क्या रहता है मैडम? देखिए, रीजन मैं क्या बताई हूँ कि फेसबुक कभी ये नहीं बोल रहा है कि मुझे लैंडिंग पेज में मैं अलग कॉस्ट करता हूँ और व्हाट्सएप पे अलग कॉस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं बोला है। लेकिन मैं ऐसे किया था एक बार कि A/B टेस्टिंग करी थी कि लैंडिंग पेज में ज्यादा कॉस्टिंग जा रहा है या फिर व्हाट्सएप में ज्यादा कॉस्टिंग जा रहा है। तो वहां पे मैं देखी हूँ कि लैंडिंग पेज में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जा रहा था मेरा ओके, तब। लेकिन अगर मैं लीड फॉर्म या फिर व्हाट्सएप पे मेरा जो कन्वर्शन है तब वो ले रही हूँ, तो वहां पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कम हो रहा है। अब इसका 2-3 रीजन हो सकता है। एक, हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, जो UI UX का बात में कर रही थी पहली स्लाइड्स में, वो हैम्पर हो रहा है, इसके वजह से हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि फेसबुक का एल्गोरिथम का इशू हो सकता है। जिस तरह से हम लोग अगर फेसबुक पे वीडियो शेड्यूल करते हैं तो उस वीडियो का एंगेजमेंट एंड व्यू कम आता है रेदर देन अगर हम वीडियो डायरेक्ट अपलोड करते हैं वहां से। तो उसका भी कोई रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ओके। वन मोर क्वेश्चन ये था मैडम, ये रीजनल लैंग्वेज का जो आप बता रहे हैं कि भाई लोकल लैंग्वेज से ट्रस्ट थोड़ा बढ़ता है, हाँ, तो उसमें मैडम एड कॉपी लिखने में या उसमें थोड़ा वो नहीं होता? मान लो उसमें तो क्या इंग्लिश में तो चैट जीपीटी से थोड़ा लिख के वो कर सकते हैं फटाफट, इसमें आप तो चैट जीपीटी पे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु सारे लैंग्वेज लिख सकते हैं। ओके, तो वो ऐसा हुक यानी अच्छा बन पाएगा उसमें? अच्छा, हाँ, अगर आप अच्छे से चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं तो चैट जीपीटी आपको अच्छे से लिख। ओके। और उसमें यानी फर्क रहता है, इंग्लिश में रहता है या नहीं हिंदी में रहता है, तो लीड का वॉल्यूम बढ़ता है क्या, सस्ता पड़ता देखिए, है मैं थोड़ा? देखी हूँ कि रीजनल लैंग्वेज सस्ता, मतलब ऐसा नहीं है कि सस्ता महंगे का बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ हाँ, पे बात है कि लीड का क्वालिटी और लीड का क्वांटिटी ओके, कितना जनरेट हो रहा है। तो हाँ, हम लोग तो फेसबुक एड्स इसलिए चलाते हैं कि मेरा क्वांटिटी में ज्यादा लीड जनरेट हो। ओके, मतलब गूगल सर्च एड्स पे जितना लीड जनरेट नहीं होता है उससे बहुत ज्यादा मेरा फेसबुक एड से लीड जनरेट होता है। हाँ, लेकिन गूगल सर्च एड से अगर 3 लीड जनरेट हो रहा है तो 3 में मेरा 2 तो क्वालिफाइड लीड्स आ ही जाएगा। लेकिन फेसबुक एड्स में अगर मेरा 100 लीड जनरेट हो रहा है तो वहां से मुझे पकड़ के चलना है कि 20 या फिर 30 मेरा क्वालिटी लीड आएगा। तो ये एक बात है। लेकिन ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी में अगर हम लोग रीजनल लैंग्वेज यूज करेंगे तो मैं देखी हूँ कि ज्यादा वाला मेरा जो है कन्वर्शन रेट, और मेरा अगर मैं बोलूंगी क्वालिटी लीड्स जो होता है वो बहुत ज्यादा आता है। इसका पीछे 2-3 रीजन होता है, क्योंकि फेसबुक तो ओवरऑल बहुत लोग यूज करते हैं। हम्म, जिन लोगों का इंग्लिश स्ट्रांग भी नहीं है वो लोग भी यूज करते हैं। तो कभी ओके, कभार लगता है कि वहां से ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। अब ये आपके हम्म, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एजुकेशनल कोई चीज बेच रहे हैं, लाइक आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप इंग्लिश में हम्म, चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर या फिर आपका कोई सैलून है, उसमें आप अगर कुछ सेल कर रहे हैं, या फिर आपका जो बोल रहे हैं आप रियल एस्टेट बिजनेस बोल रहे हैं, ये अगर आप सेल कर रहे हैं, तो ये सब अगर आप रीजनल लैंग्वेज पे सेल करेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा, तो आपके पास उल्टे सीधे कॉल आना भी बंद हो जाएगा। कि कभी कभार हम ओके, देख सकते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं कि गेट हाई पेइंग जॉब टू डू दिस कोर्स, तो लोगों को लगता है कि हम जॉब का पोस्ट किए हैं और लोग जॉब के लिए इंक्वायरी करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम लोग बहुत फेस किए हैं।
तो उसके बाद बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे लगा है कि हाँ, रीजनल लैंग्वेज पे अगर हम लोग कैंपेन चला रहे हैं तो वहां से मेरा जो लीड क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, रेदर देन मेरा अगर ओवरऑल इंग्लिश में चला रहे हैं तो उससे तो अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो मैं स्लाइड चेंज तो मैम करूँ या ऐसे ये मैं पूछ रहा था कि मैम जो फेसबुक ऐड का ऐसे नॉर्मल क्या कॉस्टिंग क्या आता है या फिर ये वैरी करता है, इसका कुछ एक आइडिया, एक जनरल आइडिया बता सकती हैं? देखिए, आप 200 रुपया से ऐड चला सकते हैं। आपका डेली बजट अगर आप 200 रखेंगे, आप डेली बजट 200 से ऐड रन कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट के लिए ऐड चला रहे हैं, आप कहाँ पे ऐड चला रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेट्रो सिटीज पे ऐड चला रहे हैं, आपका ऐड का कॉस्टिंग ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए थोड़ा टायर 3 टायर 2 सिटीज पे जा रहे हैं तो आपका ऐड का कॉस्टिंग कम आएगा। लीड्स एड्स में आप कोई कुछ बोल रहा है? ओके, तो लीड्स एड्स में आपको 200 रुपया में ऐड नहीं मिलेगा, मतलब लीड नहीं मिलेगा। लेकिन 200 रुपया का अगर आप पेज लाइक ऐड चलाते हैं तो आपको अच्छा खासा पेज लाइक मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सिर्फ डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। आपका एड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव भी डिपेंड करता है कि आपको आप कौन सा एड ऑब्जेक्टिव लेके ऐड चला रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एड का कॉस्टिंग कितना जाएगा। उसके साथ साथ अगर लीड एड्स का बात करेंगे तो मैम लीड ये का फ्लो, हाँ, कॉस्टिंग कैसे होती है? अगर किसी ने क्लिक किया तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा या बस ऐसे ही चला दिया पर डे का कॉस्ट, ऐसा क्या होता है? एक तो होता है आपका जो एड दिख रहा है, मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, CPM एक कटता है। अच्छा, अगर कोई एड पे क्लिक कर रहा है तो उसका भी आपका थोड़ा बहुत जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अल्टीमेट क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? अगर आप पेज लाइक सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका CPC जाएगा। अगर आप लीड एड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका CPL जाएगा, कॉस्ट पर लीड। मतलब जितना लोग लीड फॉर्म सिलेक्ट मतलब फिलअप करेंगे उसके अगेंस्ट आपका कॉस्टिंग जाएगा। अगर आपका लीड का जो क्या बोलते हैं, फ्लो, लीड का फ्लो अगर आपका ज्यादा है तो आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। अगर आपका लीड का फ्लो कम है तो आपको कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट का डिमांड वाइज आपका कॉस्टिंग जाएगा। लेकिन हाँ, एड दिखाने का एक पैसा फेसबुक रोज ही कटता है, और उसके साथ साथ वो कॉस्ट पर लीड भी कटता है। कॉस्ट पर लीड ही ज्यादा जाता है, एड दिखाने का पैसा उतना नहीं कट जाता है। Ma'am, if for example, if I'm running a digital marketing agency, okay, and I'm getting a client, उनको मुझे estimate देना है, I need to fix on कौन सा ad रहेगा, what all, मतलब वो पूरा strategy I have defined. But then how to charge them basis to this? इसके ऊपर are you covering something? Because that is something which is absolutely new for us. ओके, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और आप चाह रहे हैं जी कि आपका क्लाइंट को एस्टिमेट देना है, तो पहली बात तो ये है कि आपको क्लाइंट का बिजनेस जानना है कि आपका जो क्लाइंट है उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा ऐड आता है। ठीक है, तो लीड्स एड्स जो होता है, लीड्स एड्स हम सारे तरह का बिजनेस पे नहीं चला सकते। ओके, ये तो लीड्स वर्सेस प्रोस्पेक्ट है, लुक मैं दिखाती हूँ। मुझे 2 स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा, एक सेकंड। सो जो लीड एड होता है, तो लीड एड हम सब में चला नहीं सकते। तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है, मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है या फिर मैं इसको छोटा कर दूं? नो नो मैम, दिख रहा है पूरा स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लीड एड्स जो है, लीड्स एड्स जाता है मेरा जो रियल एस्टेट बिजनेस है, ये बिजनेस पे एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे, हेल्थ केयर अगर कोई बिजनेस होगा वहां पे जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, ये सब चीज सेल कर रहे हैं उसमें जाएगा। अगर आप मतलब जितना भी सारा आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जो लोग डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं देख पा रहे हैं, डायरेक्ट परचेस नहीं कर पा रहे हैं लोग, मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, अगर इस तरह का कोई बिजनेस है आपके पास, तो उस चीज के लिए आपका लीड एड जाएगा। लेकिन अगर आपका मतलब आपके क्लाइंट जो आया है उसका बिजनेस इस तरह का बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, कोई फैशन हाउस चलाता है,
तो उसके लिए आपका पूरा एड स्ट्रेटेजी अलग होगा। उसके लिए आपको पहले वीडियो व्यूज एड चलाना पड़ेगा, उसके बाद उसको आपको शॉपिंग एड्स, कैटलॉग एड्स दिखाना पड़ेगा। अब इसका जो बजट है, ये बजट आप कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए पहले आपको चाहिए उसका पेज का एक्सेस। उसका पेज का एक्सेस नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसका पेज का एक्सेस मिलने के बाद आप हर एक टाइप ऑफ कैंपेन पे जाएंगे और डेली बजट 300 से लेकर 500 तक हर एक चीज देके देखेंगे कि कितना लीड वो जनरेट करके दिखा रहा है आपको। जब हम लोग लीड एड्स रन करना सीखेंगे तब आपको हम दिखा सकेंगे कि कैसे हम लोग वहां पे एस्टिमेटेड बजट के जैसे हम देख सकते हैं कि मेजरेबल रिजल्ट क्या आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हिसाब लगा के डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पैसा आप चार्ज करेंगे। लेकिन हाँ, एक फिक्स्ड कॉस्ट आपका रहेगा। मतलब मान लीजिए आपका तो सिर्फ एड का काम नहीं रहेगा एज एजेंसी, आपको उसका ऑर्गेनिक भी लेना है, उसका एड वाला पार्ट भी लेना है। तो अगर आप उसका ऑर्गेनिक पार्ट ले रहे हैं तो उसका ऑर्गेनिकली आप उसमें कितना दिन का कंटेंट दे रहे हैं। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मैं वीकली 12 कंटेंट पोस्ट करूंगी, उसके लिए मैं 6000 या फिर 8000 चार्ज करूंगी। ये हो सकता है एक चीज। और उसके साथ साथ अगर आप एड चला रहे हैं तो जितना बजट का एड चला रहे हैं वो एड आपको, मतलब एड बजट आपको जो आपका जो ऑडियंस है उससे लेना पड़ेगा, और एड के लिए अलग कॉस्टिंग आपको देना पड़ेगा। वो अलग बात, मतलब आप आपका सर्विसेज चार्ज लेंगे एड के लिए, वो आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना सर्विसेज चार्ज लेंगे। ठीक है? तो कोई भी एज ए एजेंसी आप जब काम करेंगे तो आपका काम सिर्फ एड चलाना नहीं रहेगा, आपको ऑर्गेनिकली पार्ट भी देखना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा। थैंक यू। तो इसके पहले वाला जो स्लाइड है, यहाँ पे हम लोग बात किए हैं लीड्स वर्सेस प्रोस्पेक्ट्स पे। मतलब कब हम एक को लीड बोलते हैं और कब हम एक लीड को प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो लीड का मतलब क्या बोली थी मैं, कोई अगर क्वेरी कर रहा है, मतलब इनिशियल क्वेरी, उनको सिर्फ जानना है मेरे प्रोडक्ट के बारे में या फिर मेरे कंपनी के बारे में, तब हम एक चीज को लीड बोल सकते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर कोई साइनिंग अप वाला फॉर्म फिलअप कर रहा है या फिर फ्री डेमो क्लास का फॉर्म फिलअप कर रहा है, तब वो मेरा एक लीड पे काउंट होगा। ठीक है? अच्छा, अब प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट मतलब अगर कोई लीड आपका, आप तो खुद एक कस्टमर प्रोफाइल बना के रखें आपके दिमाग पे कि अगर ये क्राइटेरिया मेरा मैच करता है तब ये इंसान मेरा कस्टमर है, मतलब ये इंसान मुझसे प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो जब वो कस्टमर प्रोफाइल मैच करेगा एक लीड आपका, तब वो लीड आपका प्रोस्पेक्ट होगा। मतलब जिसका चांसेस एटलीस्ट 70 to 80% चांसेस है आपका प्रोडक्ट लेने का, देन इट विल बी कॉल्ड अ प्रोस्पेक्ट। ठीक है? मतलब जो आफ्टर डेमो, मतलब डेमो क्लास अटेंड करने के बाद या फिर फ्री साइन अप अटेंड करने के बाद आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं प्राइसिंग के बारे में, कैसे परचेस करेंगे, परचेसिंग प्रोसेस के बारे में, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंसान मेरा प्रोस्पेक्ट है, ये इंसान मुझसे प्रोडक्ट खरीद सकता है। ठीक है? अच्छा, ये वाला पार्ट में क्लियर कर पाई, लीड वर्सेस प्रोस्पेक्ट, मतलब लीड क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है? हेलो? Yeah, I understood that. ओके। मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बताइए। मैडम काफी बार ऑनलाइन मान लो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट रहता है, अलग अलग चीज रहती है, फिर वो लोग कहते हैं कि भाई आप 200 रुपीज भरो, आपको अगर स्पोकन इंग्लिश करना है, बराबर है, फिर आप अपस्किलिंग और वो सब, तो उसमें भी मैडम लीड कॉस्ट यानी वो 200 रुपीज चार्ज रहता है, वो इनिशियल 2-3 घंटे के कोर्स के लिए। तो उसके लिए भी फेसबुक 200 या उतना ही लीड चार्ज करती है या कम करती है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू यानी जो कोर्स है मिनिमम उसकी 200 रुपीज ही है, समझ गए ना आप? तो उसमें किस तरीके से चार्ज करती है? उसमें प्रोडक्ट वैल्यू के हिसाब से चार्ज नहीं होता है, ओके। उसमें वो कितना बार आपका ऐड दिखा रहा है उसके ऊपर चार्ज होता है। और दूसरा, आपका लीड का डिमांड कितना है, मतलब लीड का फ्लो कितना है, उसके ऊपर चार्ज होता है। मान लीजिए ओके। एक दिन उसका प्रोडक्ट का लीड का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस दिन आपका प्रोडक्ट का मतलब सीपीएल हो सकता है 200, 120। 120 अभी के रेट में नहीं आता है, एक टाइम पे 120 आता था, लेकिन हाँ 150, 180, 200 ऐसा लीड कॉस्ट आ जाता है। अब एक दिन मान लीजिए कि किसी को ही 200 रुपया का फ्री क्लास नहीं करना है, तब आपका लीड कॉस्ट 1500 तक भी जा सकता है।
तो ये तब वो डिपेंड करेगा कि आपका लीड का फ्लो कितना है उसके ऊपर। ओके, तो उससे कोई मायने नहीं रखता कि क्या अमाउंट आप प्रोडक्ट रखते हो। ओके, और ई नहीं, कॉमर्स हमेशा रहता है तो मैडम, ई कॉमर्स रहता है मान लो कि जिसमें वो प्रोडक्ट बाय करके एग्जिट ही कर लेता है। समझ लीजिए कि भाई कोई परफ्यूम है या ऐसा कुछ है, 600 रुपीज की प्रोडक्ट या 500 वहां रुपीज पे की, पूरा प्राइस पे डिपेंड करता है। प्राइस के ऊपर, यानी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वहां पे प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके प्राइस, साथ साथ मार्केट डिमांड। ओके। रियल एस्टेट की मैडम लीड, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उसकी लीड महंगी रहती है क्या मैडम? उसका लीड महंगी रहती है, उसका लीड महंगी रहती है, उसमें स्पेशल कैटेगरी पे भी ऐड चलाना पड़ता है। और मैडम गूगल एड्स में ना काफी बार बताते हैं कि भाई मिनिमम आस्किंग ये है, मैक्सिमम ये है, तो गूगल एड्स में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि नहीं कि पता चले कि ये फेसबुक में कि भाई हम जो पे कर रहे हाँ, हैं ज्यादा पे कर रहे हैं? फेसबुक एड्स भी बता देता है कि आपको इतना पे करना है, आपको इतना पे नहीं करना है। एवरेज एवरेज क्या चल रहा है वो? हाँ, वो ओके। बता देगा। आप जब फेसबुक एड्स चलाएंगे, आपके पास जब मेटा बिजनेस सूट का डैशबोर्ड होगा, तब वो हाँ, आपको बता देगा कि आपको 100 रुपया में कितना लीड मिलेगा, 200 रुपया में कितना लीड मिलेगा, सब कुछ। वो साइट अच्छा पे जो मैडम, बताता है वही रहता है। हाँ, हाँ, ओके। बताइए हेलो। कौन। हाँ, बताइए। हाँ मैं बोल रहा था, इससे हम गूगल का लिंक क्रिएट करना सीख पाएंगे या नहीं? जैसे कि गूगल पे गूगल अपना का कुछ बनाना, वेबसाइट। देखिए, अभी तो देखिए हम लोग फेसबुक एड्स सीख रहे हैं, तो फेसबुक एड्स में आप लोग वेबसाइट बनाना नहीं सीख पाएंगे। वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो उसका अलग कोर्स होता है। और वेबसाइट आपको लगता है एसी और गूगल एड्स पर्पस के लिए। अगर हम लोग फेसबुक एड्स का बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि फेसबुक एड्स चलाने के लिए आपका वेबसाइट लगे। नहीं, मुझे एक्चुअली गूगल के मतलब जो वेबसाइट बनाने के बारे में ही जानना था, तो उसके लिए ये कोर्स है या दूसरा कोर्स है? वो तो आपको यहाँ का जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट है वो बता पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, थैंक यू। मुजाहिद, ये जो आप जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू योर वेबिनार। ये जो वेबिनार हो रहा है ये मेटा एड्स के ऊपर हो रहा है। कोर्स डिफरेंट चीज है। हम आपको जो अभी आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये वेबिनार प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर हम आपको नॉलेज दे रहे हैं कि आपको मेटा एड्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड या व्हाट्सएप पर या ऑडियंस नेटवर्क पर हम किस तरीके से एड्स चलाते हैं। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट करना वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, वो हमारे पास कोर्सेज है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वेबिनार है। कोर्स के लिए अगर आपको बात करना होगा तो कोर्स अलग से बात होता है। ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड वेबिनार है। अच्छा, ठीक ये है। मेटा एड में गूगल एड कवर नहीं होगा ना मेटा एड में? नहीं, मेटा एड्स इज ओनली बेस्ड ऑन फॉर द मेटा। गूगल एड्स इज डिफरेंट। या ओके फाइन। सो इसमें सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, मैसेंजर उतना होगा कवर? हाँ, थ्रेड्स, ऑडियंस नेटवर्क, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, राइट राइट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्यों लीड एड चलाते हैं। एक तो होता है कि हम लोग मैसिव डिजिटल ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। इंडिया में 850 प्लस मिलियन प्लस इंटरनेट यूजर्स हैं, जहाँ पे 500 मिलियन लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो आप इतना सारा लोगों के पास पहुंच सकते हैं। प्लस फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा दुनिया पे, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीच मिल जाएगा। थर्ड जो है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग पड़ेगा, कि आपको लोअर सीपीएल मिलेगा, जैसा मैं बोली हूँ कि आप 200 रुपया में ऐड चला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और तीसरा चौथा जो है, आपको सोशल मीडिया एज ए रिसर्चर मिलेगा, कि आपको मिल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिव्यूज कैसा आ रहा है, टेस्टिमोनियल्स कैसा आ रहा है, इंसान किस तरह से आपका प्रोडक्ट पे जो होता है कि रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो ये सारे रीजन की वजह से हम लोग फेसबुक एड्स या फिर मेटा एड्स चलाते हैं नॉर्मली। Ma'am, one last question from my side. Sometimes ये Facebook पे ad चलता है, this is a different thing. And sometimes we see ads, for example, somebody is a content creator and that person is actually doing the advertisement of one particular product or service. तो इसमें से cost effective and result oriented कौन सा रहता है? If you can just kindly answer that.
दोनों चीज अलग है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ये वाला काम कर रहा है देन दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब इन्फ्लुएंसर के थ्रू मार्केटिंग करवाना। Yeah, और जब हम लोग फेसबुक एड्स चला रहे हैं तब हम लोग डायरेक्ट मेरा जो ब्रांड है उसका ब्रांड का मार्केटिंग कर रहे हैं थ्रू correct, माय एड। correct. ठीक है, अब सेम आंसर मैं यहाँ पे भी दूंगी कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। आप कोई इन्फ्लुएंसर का बात सुन के तो कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, या फिर आप किसी इन्फ्लुएंसर का बात सुन के क्या कोई कोर्स कर लेंगे? Rather, if I'm following that person for a long time and that person is doing the advertisement, maybe I'll believe more instead of just watching a ad. Yeah, you believe more. It can build the trust, Hmm. but it can't be a conversion. लेकिन अगर कोई That's what my question is कि conversion मैम ज्यादा कहाँ पे होता है? For example, I have one प्रोडक्ट टू product. प्रोडक्ट डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप okay. स्किन केयर या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स इस तरह की चीज सेल करें जिसका प्राइस कम है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का प्राइस 500, 700, 1000, 2000 ऐसा कुछ है आपका प्रोडक्ट का प्राइस, Yeah. देन अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हैं तो वहां पे चांसेस रहता है कि इन्फ्लुएंसर से वो प्रोडक्ट खरीद ले या फिर वो कूपन कोड यूज करके वो प्रोडक्ट खरीद ले। लेकिन आपका प्रोडक्ट का प्राइस 50,000, 60,000, 70,000 है, तो तब अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवा रहे हैं, हाँ, अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है, अगर ब्रांडिंग करना है, अगर अवेयरनेस जनरेट करना है बिजनेस के बारे में, तब आप कर सकते हैं, देन इट Okay. कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर आपको सेल्स चाहिए, आरओएस जनरेट करना है, तो अगर आपको ये करना है तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि 50,000 या फिर 70,000 क्या मैं इन्फ्लुएंसर के बात पे आके दूंगी? अगर आप दे देंगी तो आप चला सकते हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं, अगर आपको सेकंड थॉट आ रहा है, देन वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। Okay. ठीक है, तो हम जब मैम भी किसी भी मार्केटिंग करेंगे तो खुद को एज एक ऑडियंस की जगह पे पहले बिठाएंगे कि अगर मैं इसको इस तरह से देखती या फिर इस एड को मैं इस तरह से देखूंगी, क्या मैं यहाँ से प्रोडक्ट खरीदूंगी? क्या मैं खुद ट्रस्ट बिल्ड कर सकती हूँ? अगर हाँ आता है आंसर, देन गो फॉर इट। अगर आंसर ना आ रहा है या फिर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे आपको और काम करने का जरूरत है। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक दिन में हम लोग बिल्ड नहीं कर सकते। हमको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंपटीटर्स कैसे काम कर रहे हैं, कंपटीटर्स क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड होगा। समझा पाई हूँ मैं? Yeah, up तो to मैम extent. एक चीज और उसमें पूछना था मुझे हाँ बताइए। कि जैसे इसमें टारगेट ऑडियंस कैसे फिर इसमें सेलेक्ट करते हैं? जैसे अगर रियल एस्टेट है वो तो हर किसी के लिए नहीं होगा, वो एक सर्टेन एज ग्रुप और एक सर्टेन इनकम के लोगों के लिए होगा। तो उसमें कुछ ऑप्शन रहता है चूज करने के लिए, या फेसबुक अपने हिसाब से वो एल्गोरिदम चूज करता है, या हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस इन मेटा एड्स। तो फेसबुक एड्स पे क्या होता है कि 4 टाइप का ऑडियंस होता है। एक मेरा आता है कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस का मतलब डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज, इन सब के ऊपर बेस करके अगर हम लोग ऑडियंस सेटअप कर रहे हैं तो देन उसको हम लोग कोर ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो बताए कि रियल एस्टेट बिजनेस का तो हर कोई मेरा ऑडियंस नहीं हो सकता पॉसिबल, तो उसके लिए एक सर्टेन एज ग्रुप रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक का एज ग्रुप रहेगा। अच्छा, उनका इंटरेस्ट रहना पड़ेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे, उनका इंटरेस्ट रहना पड़ेगा कि मुझे घर खरीदना है या फिर कुछ, या फिर मुझे बिजनेस के लिए कोई ऑफिस खरीदना है। तो इस तरह का इंटरेस्ट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, उसके ऊपर डिपेंड करके उसके आसपास के एरिया से आप चाहेंगे कि ऑडियंस जनरेट हो, टारगेट ऑडियंस आए आपका। उसके साथ साथ बिहेवियर, मतलब जो रियल एस्टेट के बारे में देख रहे हैं, फेसबुक में स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज आपका कोर ऑडियंस के अंदर आता है। ये आप कस्टमाइजली वहां पे बना सकते हैं फेसबुक पे। ठीक है, दूसरा ऑडियंस आता है लुकअलाइक ऑडियंस। लुकअलाइक ऑडियंस का मतलब अगर आपके पास किसी ऑडियंस का लिस्ट है, मान लीजिए आप कोई ऑफलाइन एक्टिविटी किए थे, सेमिनार वगैरह किए थे, तो अगर आपके पास कोई लिस्ट है और वो लिस्ट आप गूगल मतलब फेसबुक को देके बोल रहे हैं कि भाई मैं आपको 100 इंसान का लिस्ट दिया हूँ, आप मुझे इस तरह का 10,000 इंसान ढूंढ के दीजिए,
मतलब इस सेम ऑडियंस, सेम टाइप ऑफ ऑडियंस आप 10,000 मुझे लाके दीजिए, देन दिस इज कॉल्ड द लुकअलाइक ऑडियंस। ठीक है। और कस्टम ऑडियंस क्या है? मान लीजिए जितना लोग आपका फेसबुक वेबसाइट विजिट किए हैं, आप उनको अपना वेबसाइट, मतलब जितना वेबसाइट विजिटर्स आपके पास है, उनको आप आपका फेसबुक का ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो आपका कस्टम ऑडियंस पे आ जाएगा। कस्टम ऑडियंस बहुत सारा होता है, सिर्फ वेबसाइट तो मैं एक आपको नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ। ऑफलाइन मतलब वो वाला वेबिनार एक्टिविटी से अगर कोई 100 इंसान आपका वेबिनार अटेंड किया है और आप चाह रहे हैं वो 100 इंसान को आप रिटारगेट करना चाहते हैं, तो तब भी आप कस्टम ऑडियंस पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका फेसबुक का कोई वीडियो वायरल हो गया था, आप चाहते हैं कि जितना सारा लोग वो वाला वीडियो दिखे हैं, उन सारे लोगों को आपका जो फेसबुक का ऐड है वो दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे भी हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कस्टम ऑडियंस पे आ जाएगा। अगर आप ये कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस सेव करके रखते हैं कहीं पे फ्यूचर यूजर्स के लिए, तब उसको हम लोग सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है? हेलो। मैडम ये क्वेश्चन था। हाँ बताइए। हाँ, जैसे ये आपने ऑडियंस में बोला ना, तो उसमें टारगेट बेस या इंटरेस्ट बेस वैसे अगर ज्यादा सिलेक्शन करते हैं हम्म। तो फेसबुक का यानी चार्ज या वो बढ़ता है, ऐसा कुछ रहता है वो लोगों का? या नहीं आपने नहीं नहीं मान नहीं, लो, कुछ हाँ, कुछ उसको कोई चार्ज फर्क नहीं नहीं पड़ता पड़ता ना? है। आप नहीं नहीं एचएनआई नहीं को टारगेट करते हो या वैसे? नहीं नहीं नहीं, टारगेटिंग के लिए कॉस्टिंग नहीं जाता है, लेकिन हाँ सेल्स फनल छोटा हो जाता है, तो आपका लीड आने का जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाता है। और वैसे सेम जगह पे हम आ जाएंगे, अगर लीड का फ्लो कम हो जाता है तो आपका कॉस्टिंग जो होता है वो कॉस्टिंग आपका ज्यादा हो जाएगा। तो आप ओके। जितना ज्यादा टारगेट करेंगे आपका फनल छोटा होता जाएगा, और आपका फनल जितना छोटा हो जाता है होता जाएगा, उतना आपका जो है क्या कि आपका फ्लो कम हो ऑडियंस जाएगा। या फिर लीड का जो फ्लो है वो फ्लो स्लो हो हम्म, जाएगा। और लीड का फ्लो स्लो हो जाने से आपका क्या होगा? लीड का फ्लो स्लो हो जाने से आपका जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि एक फेसबुक पे लीड एड कैसे चलाते हैं, मतलब लीड एड रन कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोगों का इतना क्वेश्चन था, थोड़ा दिखा देते हैं। तो लीड एड चलाने के लिए आपको पहले मेटा बिजनेस सूट पे जाना पड़ेगा। ये मेटा बिजनेस सूट है जो मैं पहले से ओपन करके रखी थी। तो यहाँ से आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्रिएट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। अब आप जब क्रिएट पे जाएंगे, देखिए आपको यहाँ पे ढेर सारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा है, जो मैं पहले से आपको बोलती आ रही हूँ कि हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो लीड्स एड सीख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग लीड्स लेंगे। ठीक है। तो लीड्स लेने के बाद आप देख सकते हैं कि लीड्स लेने के बाद यहाँ पे मुझे क्या क्या दिखा रहा है, गुड फॉर क्या क्या है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स। अगर आप आपका लैंडिंग पेज के थ्रू फॉर्म Madam, the जनरेट screen, कर, madam, screen that you are describing is actually not visible to me somehow. अच्छा विजिबल नहीं है, अच्छा पहले नहीं, वो नहीं कैनवा था दिख ना। रहा है। नहीं दिख रहा है। अच्छा रुके रुके रुके, मैं शेयर कर रही हूँ फिर से। हम्म, अभी दिख रहा है? Yeah, we can yeah. see it now. तो यहाँ पे हम लोग जब लीड सेट्स चलाएंगे, देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि लीड सेट्स आर गुड फॉर क्या क्या है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स। मैं क्या बोली थी, अगर आप वेबसाइट के थ्रू या फिर वेबसाइट में कोई लैंडिंग पेज बनाए, उसके थ्रू अगर आप इंस्टेंट फॉर्म जनरेट करके लीड लेना चाहते हैं, तो वो वहां पे आप कर सकते हैं लीड फॉर्म के थ्रू। सेकेंड क्या है, इंस्टेंट फॉर्म्स, मतलब अगर आप कोई वेबसाइट पे या फिर लैंडिंग पेज पे नहीं ले जाना चाहते हैं, सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म पे फिलअप करवाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अगर आप लीड जनरेट करवाना चाहते हैं, वो पॉसिबल है यहाँ से। अगर आप कॉल्स करवाना चाहते हैं तो वो कॉल्स के लिए भी यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव में जाके आपको लीड सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कोई भी कैंपेन का 3 ग्रुप होता है, 3 सेट होता है। एक होता है कैंपेन सेट जहां पे हम लोग बैठे हैं अभी, दूसरा होता है एड सेट, एंड लास्ट वाला होता है एड। कैंपेन
कैंपेन से पे हम लोग सिर्फ कैंपेन सेटअप करते हैं, मतलब कैंपेन क्या है, कौन सा एड ऑब्जेक्टिव लिख के लिए हम लोग कैंपेन सेट कर रहे हैं और कैंपेन का नाम सेट करेंगे। तो कैंपेन का नाम है मेरा लीड्स एड्स। अच्छा, उसके बाद हम जिस पेज के लिए चलाएंगे उस पेज का नाम देना पड़ेगा, एंड कौन सा डेट पे हम लोग एड चला रहे हैं वो डेट मुझे यहाँ पे देके रखना पड़ेगा। आज 10 तारीख है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे कैंपेन सेट कर दिया। अगर आप चाहे तो कैंपेन पे बजट रख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो एड सेट पे भी बजट रख सकते हैं। तो मैं एड सेट पे बजट रखूंगी, तो यहाँ पे मैं कैंपेन बजट सेट नहीं करूंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना है, आप आपका जो कैंपेन का जो नेम देंगे वो से आप ट्राई करेंगे कि आपका वो सेम नेम आप एड सेट पे भी दे और एड्स पे भी दे। इससे क्या होगा, आपको याद रखने में या फिर बाद में जब आप इसको देखेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, तो उसमें आपको मदद मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एड सेट नेम पे जाएंगे, एंड एड सेट नेम पे जाके मेरा जो कैंपेन नेम था मैं वो कैंपेन नेम यहाँ पे दूंगी। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है कि कन्वर्शन लोकेशन, मतलब आप कहाँ पे कन्वर्शन लेना चाहते हैं। तो हम तो लीड फॉर्म में कन्वर्शन लेना चाहते हैं, हम तो मैसेंजर पे कन्वर्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आएगा इंस्टेंट फॉर्म्स, दिख रहा है आप लोगों को? या तो यस यहाँ से मैम। हम लोग इंस्टेंट फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप अगर व्हाट्सएप पे भी अगर आप कन्वर्शन लेना चाहते हैं तो वहां पे आप व्हाट्सएप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है। मेरा फेसबुक पेज एमैंगो था, तो मैं ये जो एमैंगो डिजिटल है ये वाला फेसबुक पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बात है, अगर आप लोगों का नया पेज है तो आपको यहाँ पे व्यू टर्म्स पे जाके फेसबुक का टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा पुराना पेज है, मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट करके रखी हूँ, इसलिए मुझे सेकेंड टाइम एक्सेप्ट करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों का नया पेज होगा तो यहाँ पे आपको एक नील कलर का बटन दिखेगा, नीला कलर का, जहाँ पे आपको ये क्लिक करना पड़ेगा और उससे आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगा वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप लोग लीड्स एड्स नहीं चला पाएंगे। तो लीड्स एड्स चलाने के लिए ये वाला चीज एक्सेप्ट करना बहुत मैंडेटरी है। अच्छा, अब हम आएंगे बजट पे। तो जैसा मैं बताई थी, बजट के बाद यहाँ पे अगर आप पैसा देखिए, आप बोल रहे थे कि फेसबुक बोल देगा, तो सॉरी गूगल बोल देता है, फेसबुक भी बोल देता है। तो फेसबुक में अगर आप देखिए, जब हम लोग यहाँ पे 800 डेली बजट रख रहे हैं, ये मुझे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स बोल रहा है कि लीड कितना आ सकता है, इंप्रेशन कितना जनरेट होगा, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना जनरेट होगा। तो जो मुझे पूछ रही थी कि हम क्लाइंट को कैसे एस्टिमेशन देंगे, हम क्लाइंट को यहाँ से एस्टिमेशन देंगे कि यहाँ पे पैसा देके देके देखेंगे कि कहाँ से मेरा ज्यादा लीड जनरेट हो रहा है। जब हम 800 दे रहे हैं तो दिखा रहे हैं 3 लीड जनरेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 800 की जगह 1000 दे के देखते हैं कि कितना लीड जनरेट होता है। तो देखिए मैं 1000 दे दिया, 3 की जगह 4 लीड जनरेट हो रहा है। सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो प्रोडक्ट के हिसाब से इसका कॉस्टिंग भी मेरा ज्यादा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको जितना ऑप्टिमाइज करेंगे उतना मेरा इसका लीड का जो है फ्लो बढ़ेगा। तो थोड़ा ऑडियंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। तो लोकेशन टारगेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, पूरा इंडिया तो आपका होगा नहीं, आपका कुछ स्पेसिफिक लोकेशन रहेगा। तो हम यहाँ पे दिल्ली लिख सकते हैं। फिर भी मेरा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, तो थोड़ा और देते हैं लोकेशंस। फिर भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये इतना ही पैसा मांगेगा मुझसे। तो इसके साथ साथ आप एज ग्रुप भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो 18 to 65 सबको तो
मेरा जो प्रोडक्ट है वो मतलब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल करके फायदा नहीं है। नॉर्मली जिन लोगों का एज लाइक 25 से है, जो लोग बिजनेस कर सकते हैं, तो फ्रॉम 25 टू हम यहाँ पे 65 तो लेके फायदा नहीं है मेरा, 50 तक लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग एज ग्रुप जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जेंडर भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हम लोग डिटेल टारगेटिंग में जाएंगे कि इंटरेस्ट बिहेवियर के ऊपर टारगेट करना है हमें, तो उसके लिए तो डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, तो मैं सिलेक्ट करूंगी जिन लोगों का बिजनेस है, क्योंकि मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सिलेक्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा कि मैनेजमेंट, ओके, देन लेंगे B2B सर्विसेज, और भी ले सकते हैं हम लोग। जिन लोगों का सलोन है, पार्लर है, उनको भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लगता है, तो हम लोग उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग जो आप पूछ रहे थे कि हम कैसे टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड रिजल्ट दिखा देगा कि आपको कितना लीड मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आता है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स मतलब कि आपका एड कहाँ कहाँ शो होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क पे आपका जो ऐड है वो ऐड शो होगा। अगर आप यहाँ पे फेसबुक वीडियो व्यूज ऐड चलाते हैं, तो यहाँ पे मैसेंजर एंड थ्रेड्स पे भी आपका जो ऐड है वो शो हो जाता। लेकिन हम लोग इंस्टेंट फॉर्म पे ऐड चला रहे हैं, इसलिए हम लोगों का जो ऐड है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क पे भी नेटवर्क पे ही सिर्फ दिखाएगा। लेकिन अगर कोई एंगेजमेंट ऐड चलाते हैं वीडियो व्यूज के लिए, या फिर लोकल स्टोर विजिट का ऐड चलाते हैं, तो उसके लिए मैसेंजर एंड थ्रेड्स में भी मेरा ऐड दिख जाता। अगर हम फेसबुक पेज लाइक का ऐड चलाते हैं सिर्फ, तो सिर्फ फेसबुक पे ही मेरा ऐड चलता, बाकी प्लेटफॉर्म पे ऐड नहीं चलता। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मेरा जो ऑडियंस है वो सिर्फ फेसबुक पे ही है, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क पे मुझे दिखाने के फायदा नहीं है, तो आप सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अरे, मैम ये ऑडियंस नेटवर्क क्या है मैम, जो आपने सिलेक्ट किया है रीजन ऑडियंस एंड नेटवर्क का एटीट्यूड? मतलब है, हाँ बता रही हूँ, ऑडियंस नेटवर्क का मतलब है कि मेटा के साथ बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्स का बॉन्डिंग है। तो मेटा क्या करता है, अगर आप फेसबुक पे कोई ऐड चला रहे हैं, तो वो ट्राई करता है कि उनका जितना भी सारा कंपनीज का साथ टाई अप है, या फिर जितना भी सारा एप्स के साथ टाई अप है, वहां पे भी अपना ऐड शो करने का। तो वो ही होता है ऑडियंस नेटवर्क। मतलब ऑडियंस जितना सारा प्लेटफॉर्म्स पे है जहां से मेटा ऑडियंस का नेटवर्क बिल्ड करते हैं, उस सारे प्लेटफॉर्म को ऑडियंस नेटवर्क बोला जाता है। बेसिकली एक और कुछ भी नहीं है, वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से जिनके साथ मेटा का टाई अप है। आप देखेंगे बहुत सारा गेम्स है जहाँ पे आप फेसबुक का सेम ऐड दिख सकते हैं, जैसे कि सबवे सफर्स, कैंडी क्रश। इस तरह का गेम के बीच में जो ऐड आता है, आप अगर आप गौर करेंगे तो आपको मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको मैम देखने को मिलेगा कि वो फेसबुक का सेम ही ऐड दिखा रहा है। सेम क्रिएटिव, सेम लीड फॉर्म, सब सेम। मैम एक बात और पूछना था, ये जो आप कर रहे हैं तो ये फेसबुक पेज कर मेटा मेटा ऐड में जा रहे हो मैम, या फिर मतलब ये जो आप कर रहे हो मैम किस पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो या फेसबुक पेज पे कर रहे हो मैम? फेसबुक पेज पे कर रहे हैं। देखिए, ऐड चलाने के लिए मैं तो सिर्फ आपको ऐड सेटअप दिखा रही हूँ। ऐड चलाने के लिए आपका फेसबुक पेज होना जरूरी है, आपका एड अकाउंट होना जरूरी है, एड अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, और उसके बाद ही आप ऐड चला सकते हैं। और मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपके पास 6 महीना पुराना एक फेसबुक अकाउंट होना जरूरी है। तो क्या फेसबुक अकाउंट जो पर्सनल है उसको हम लोग बना सकते हैं फेसबुक पेज? नहीं, आप फेसबुक अकाउंट को क्यों फेसबुक पेज बनाएंगे? आपका जो फेसबुक अकाउंट है वहां से आप मल्टीपल फेसबुक पेज बना सकते हैं। और ओके। आपका जो ऑडियंस है वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इस पेज का एडमिन कौन है।
मैडम एक चीज और था कि ये कॉस्ट पर रिजल्ट जो यहाँ पे दिखा है ना आपने, तो कॉस्ट पर रिजल्ट और कॉस्ट पर लीड उसमें फर्क है क्या? नहीं, सेम ही है। बिकॉज इसमें आपने 1000 जैसा कॉस्ट किया था, उसके एस्टिमेटेड आपका 4 दिखा रहा है लीड। हम्म। ओके, तो 1000 में अगर 4 है तो 250 आना चाहिए कॉस्ट पर लीड, तो ये 217 आ रहा है। तो इसमें कुछ फर्क ये है क्या, कैसा है वो? फेसबुक का खुद का कैलकुलेशन है। अच्छा, उसमें ऐसा कोई लीनियर नहीं है ऐसा वो? नहीं नहीं, आप अगर 2 दिन बाद देखेंगे तो मतलब अगर आप लीड चलाने के बाद अगर आप देखने जाएंगे तो देखेंगे कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट 1000 भी आ सकता है। वो भी पॉसिबल है। और लीड का नंबर सेम रहे कभी? लीड का नंबर नहीं, लीड का नंबर तो तब कम घट जाएगा। घट जाएगा, ओके। हम्म। तब तो घट जाएगा। और ये आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हो भाई, एस्टिमेटेड 4 जो उन्होंने लिखा है तो उतना एक्चुअल मिलता है उसमें, क्या उसमें फर्क आता है उसके अंदर? फर्क आता है, 4 बोल रहा है तो 2 देगा। अच्छा। और दूसरा था कि ये एड सेट बजट और कैंपेन बजट, इसमें क्या क्या फर्क आता है वो? एड सेट बजट एंड कैंपेन बजट में फर्क यही है कि एक कैंपेन के अंदर बहुत सारा 2 3 4 एड सेट हम रख सकते हैं। तो अगर हम कैंपेन में बजट देते हैं तो 2 3 4 एड सेट में वो लोग मतलब वो कट होगा, पैसा उस तरह से ही कट होगा। लेकिन अगर हम लोग एड सेट में पैसा देंगे तो मेरा कॉस्टिंग थोड़ा कम आ जाएगा। ओके। ओके मैडम। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि टाइम अप होने का टाइम हो गया है और मैं तो आप खत्म नहीं कर पाई आपका जो ये है क्या बोलते हैं पूरा चीज। और फेसबुक का जो लीडर है वो एक दिन में पूरा खत्म, मतलब 1 घंटे में खत्म करना भी पॉसिबल नहीं है लीडर में। लेकिन मैं जितना सारा जितना पढ़ाई हूँ उतना आप लोगों को क्लियर है। या मैडम, Yeah, टू ma'am. दैट एक्सटेंट या। ओके। अगर आपको यहाँ से कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं वो क्लियर कर दूंगी। Ma'am, will this material be shared, the PPT? Yes, I can share the PPT. Maybe we can go through that, and once we have some further questions, because this is not a small topic. Obviously, some questions will be there. We can get back to you. Okay, sure. ओके, मेरा जो पीपीटी है मैं प्रिया मैम को शेयर कर दूंगी, वो आप लोगों को शेयर कर देंगे पीपीटी। मैम, एक छोटा सा डाउट था। हाँ, बताइए। मैडम, मैं एक एड रन कर रहा हूँ, उसमें मेरे को ना 40 लीड्स डेली आते हैं यहाँ तो, और मैं वही नंबर पे रीटारगेटिंग करना है तो कैसा करना होगा? देखिए, रीटारगेटिंग एक लंबा प्रोसेस है, आपको मेटा पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये छोड़ के भी आप आपका जो लीड का जो लिस्ट है आपके पास, उस लिस्ट को आप एज अ कस्टम ऑडियंस वहां पे फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। और फेसबुक पे अपलोड करके आप वहां पे एड चलान करके उसको रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेटिंग तो अलग प्रोसेस है मैडम। देखिए, अलग बात नहीं है, आपके पास अगर कोई ऑडियंस का डेटा ऑलरेडी मौजूद है, आप उसी ऑडियंस को रीटारगेट करना चाहते हैं। रीटारगेट करना मतलब क्या होता है कि आप किसी को टारगेट कर चुके हैं और उसको आप रिपीट करके टारगेट करना चाहते हैं, मतलब आप हैमरिंग करना चाहते हैं। उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हम हैं, हमारा प्रोडक्ट आप देखिए, आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप नॉलेज गेन कीजिए। तो अगर आपको ये करना है तो इसके लिए आप रीटारगेटिंग करते हैं। और इस तरह के से आपको अगर रीटारगेटिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो प्रीवियस डेटा सेट है उसको ही फेसबुक पे अपलोड करना पड़ेगा, और तब फेसबुक क्या करेगा, उसी इंसान को बार बार आपका जो ऐड है वो दिखाता जाएगा। ओके मैडम। ठीक है। So can we stop it, end it here? So, ma'am, या thank you मैडम। so much. Thank you. Please everyone do poll. So 5. Done, ma'am. Ajay, Anjali, Gaurav, Kasturi, Ibrahim, Rajiv, Dipendra. Please do Yes, sir. poll everyone. I have done, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for coming. Bye everyone. Good night. Good night.
हाय, जो लोग हैं उनको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल दीज थिंग्स। थैंक्स अजय, अंजलि, गौरव, कस्तूरी, प्रीति, रिपेंद्र, एवरीवन, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे से पूछना है आपको? एज ऑफ नाउ किसी के पास कुछ है जो छूट गया है और क्लोज करने के पहले कुछ क्वेश्चन पूछना है? यू कैन आस्क विथ मी। हेलो। यस 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 कस्तूरी जी। यस कस्तूरी जी, हाय। वगैरह कैसे ऐड कर आवाज नहीं आ रही है कस्तूरी जी। आ, हेलो। ओके। अंजलि, अजय, रिपेंद्र, गौरव, आप लोगों को कुछ पूछना है? यस और नो बोल दीजिए। नो सर, जितना बताया उसमें तो कुछ नहीं पूछना। सर एक बात सिर्फ पूछना था मुझे। हाँ। मैम ने जो बताया स्टार्टिंग में एक्चुअली उनका स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पाया था, तो जो जहाँ पे वो रन कर रही थी, जो मेटा का उन्होंने लाया था स्टार्टिंग पॉइंट, वो चीज समझना है कि वो कहाँ से लाया था। मेटा एड्स मैनेजर, जी सर। गूगल पे सर्च करना है मेटा एड्स मैनेजर। अच्छा, ओके। ठीक है। एक क्वेश्चन था अजय जी का, अजय फलदर जी का, कि लैंडिंग पेज पर कॉस्ट ज्यादा लगता है या लीड फॉर्म पे कॉस्ट ज्यादा लगता है? राइट अजय, आपका ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था? आई एम ऑडिबल अजय? आपको आवाज आ रही है? ठीक है। तो मेटा में एक चीज, अभी बहुत ज्यादा चीज चेंज हुआ है। जितना भी मेटा अभी काम कर रहा है, जो एड चल रहा है, एड रन कर रहा है, अब सारे के सारे एड्स जो है एआई सेंट्रिक एड्स के परफॉर्मा पे रन हो रहा है। मींस सिर्फ और सिर्फ मेटा बोलता है कि वी डोंट नीड टारगेट ऑडियंस, वी डोंट नीड डिटेल्स, वी डोंट नीड ईच एंड एवरीथिंग। हमें सिर्फ आप क्रिएटिव अच्छा बना करके दो, आइदर वीडियो, ऑडियो, इमेज। हम आपका एड 90% परफॉर्मेंस ज्यादा देंगे। तो बहुत सारी चीजें इस पे भी चेंज आई है जो हम आगे वाले क्लास पे पढ़ेंगे। ठीक है। यस। सो कंचन, मेरे क्वेश्चन यही थे कि रीटारगेटिंग वगैरह जो फाइनेंस है, हाँ ए एंड बी टेस्टिंग है, रीटारगेटिंग है, ये हाँ सारे थोड़े फाइनेंस हैं जो नहीं आता है। मोटा मोटा तो ऐड चलाने आता ही है। हाँ नाउअडेज मेटा इटसेल्फ हेल्प्स अ लॉट कि हाँ आप ऐसे ऐड चलो, ऐसे ऐड चलाओ। हाँ। बट ये कुछ फाइनेंस है जिसके वजह से कॉस्टिंग वगैरह कम आ जाएंगी। तो इसके लिए क्या और कैसे कर सकते हैं? जैसे रीटारगेटिंग के लिए हमें कोई एक प्लेस चाहिए जहां पर हम अपना डेटा को स्टोर कर सके। तो जनरली क्या होता है, वेबसाइट रखता है। दूसरा चीज, इंस्टाग्राम पर भी डेटा स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो सिर्फ 90 डेज का होता है और लिमिटेड होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम ऑलरेडी मेटा का सर्वर है तो बर्डन होता है। तो इस चीज के लिए वो डेटा देता भी नहीं है, बहुत बहुत ही लिमिटेड डेटा देता है। सो वहां पर 90 दिन पहले जो इंस्टाग्राम पे आए थे उनको आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। सेम चीज आपके फेसबुक पर भी होता है, सिर्फ वो 30 डेज का होता है। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी होता है, 45 डेज का होता है। लेकिन वेबसाइट पर जो होता है वो ओवर 5 इयर्स का होता है। तो 5 साल तक अगर आपके पास आ रहे हैं, 5 साल पहले भी कोई आए थे, 2 साल पहले आए थे, 2 दिन पहले आए थे, वो सारे को रिटारगेटिंग लेयर बाय लेयर कर देगा। लेयर बाय लेयर क्या होता है कि एक लेयर में उसको उनको एक बार ऐड दिखाएगा। अगर उनको ऐड पसंद आ रहा है, उनका अभी अभी उनका इंटरेस्ट इसी ऐड में है या इसी बिजनेस में है, तो उनको दिन भर में 4 बार ऐड दिखाएगा। फिर उस ऐड के बाद उसमें एपीआई व्हाट्सएप भी डाल देगा ताकि आप व्हाट्सएप पे बात कर सके। मतलब लेयर बाय लेयर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके वो आने लगेगा। और रीटारगेटिंग कॉस्ट कटिंग होता है, कॉस्ट सेविंग होता है। इन कंपैरिजन टू अदर प्लेस, रीटारगेटिंग इज वेरी कॉस्ट सेविंग। यस यस। तो वही चाहिए था कि सारे डिटेल्स में एक बार समझ में आ जाता तो बेहतर होता। हाँ हाँ हाँ। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर लेंगे आगे। और अगर इसके बारे में जानना है
तो क्लास बुक कर लीजिए, क्लास हम लोग कर लेंगे, क्लास करके और सारी चीजें को डिटेल में बता देंगे कि कैसे बनता है ऑडियंस नेटवर्किंग, कैसे बनता है और इंगेजमेंट कैसे होता है, उसमें हम रीटारगेटिंग लुक अलाइक ऑडियंस कैसे कैसे करते हैं, तो वो सारा चीज हाँ हाँ वो सारा चीज प्रैक्टिकली दिखा दूंगा और सेटअप भी करा दूंगा आपके पोर्टफोलियो पर, मतलब एड्स मैनेजर पर। ठीक है, दैट वुड बी, क्योंकि ए बी टेस्टिंग एंड जितने भी रीटारगेटिंग, लुक लाइक ऑडियंस, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। नॉर्मल ऐड लगाना तो आता है, तो कोई वो तो बहुत इजी है, कोई भी सीख लेगा। हो जाएगा, हो जाएगा, कर देंगे। आपके पास जब हो आप एक क्लास करके तो ये कर दीजिएगा, बुक कर लीजिएगा। ठीक है, श्योर श्योर। ठीक है। और गौरव, अजय, अंजलि, कोई क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, थैंक यू।